Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये जो 2030 वाले टारगेट्स दिख रहे हैं, that practically has to come here by 2025 in India. So if we look at the numbers, सुबह भी बताया था, totally estimated incident TB cases world over में 10.4 million, जिसमें 2.7 million India, which makes almost 27% of the world's total. TB mortality देख लें, almost 31, that almost 1 in 3. HIV incident TB, just because हमारे यहाँ HIV कम है इसलिए percentage wise it comes down less. MDR TB is also on the lesser side compared to the numbers in TB, just because probably we have had a reasonably okay TB program over the years. And again, children with TB also is less. Children with TB is something which is a concern, because even though there is sort of India shows that kind of number, we are never able to identify that many because that's a concern again. So that should also be one area which needs to be focused by the TSU, pediatric TB. TB has surpassed HIV as the #1 infectious disease worldwide from 2014 onwards, and it's the most common cause of death amongst HIV. Now if we try and unravel the numbers, हमने 10.4 million देखा था वहाँ, 2015 में just 6.1 million cases were identified. मतलब 43 लाख TB cases annually were being missed out, और जिसमें almost 6 लाख बच्चे भी थे. Amongst the missed cases, 1.15 million is from India. मतलब 11.5 लाख केसेस हम एनुअली मिस कर रहे थे 2015 में. रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसे ऐसे आते हैं, जस्ट टू गिव अ आइडिया ऑफ हाउ व्हाट. और ऑलमोस्ट 6 lakhs ड्रग रेजिस्टेंट केसेस भी वर्ल्ड ओवर होते हैं, जिसमें बस 25%, और मतलब 1.5 लाख ही सिर्फ आइडेंटिफाई होते हैं, मतलब 4.5 लाख नहीं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 1 non-identified TB case infects between 10 to 15 new cases. तो अगर वो ड्रग रेजिस्टेंट केस होगा, वो इन्फेक्ट करेगा, तो सीधा ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन ही इन्फेक्ट करेगा. So that will become that much more difficult. There are countries in Eastern Europe, which is the old Russian countries, वहाँ पे very high rates of drug resistant TB, because of the same thing. They never identified the drug resistant cases. उन्होंने normal drug TB cases को मैनेज करते रहे, अब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस ही इन्फेक्ट कर रहे हैं कम्युनिटी में.
Why do we have? What are the reasons for missing? एक तो बड़ा आसान है, भैया हम हेल्थ डिपार्टमेंट में बोले भैया तुम्हारा एस्टिमेट ही गलत है, हमारे तो नंबर कम है. If we look at it holistically, so one could be under diagnosis of cases. बहुत लोग खांसी है, ये है, फिर भी नहीं जा रहे ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि देयर कुड बी ऑल्सो वन रीज़न लाइक यू मैंशनड कि भाई उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब रीजन से टीबी के भी लक्षण हो सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो देयर, उसे आइडिया ही नहीं है. बहुत लोग हियर बाबाज अल्टरनेटिव मेडिसिन, मैं तो भस्म गोलियां और फलाने खा के मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बस ऐसे खराश है, ये है, वो है, whatever. Then poor diagnostic test availability is coming from the 2015. In 2015 India banned एक टेस्ट आया करता था TB Gold, which was very rampant and used by private sector. प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल खुला यूज करती थी TB Gold. And TB Gold is the most useless test for TB. मतलब उससे ज़्यादा यूजलेस हो ही नहीं सकता. एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल डॉक्टर्स वुड स्वेयर बाय दैट कि नहीं TB Gold है, whatever है, तभी है. The basic thing about TB Gold is it tests TB infection. It does not test TB disease. तो भाई इन्फेक्शन तो मैंने बता दिया 40% पॉपुलेशन को होगी, तो आप उसे ट्रीट करके कर क्या रहे हो, बाकी को मिस आउट कर रहे हो. सो पुअर डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई इट वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हेन गुड एथिकल डायग्नोस्टिक regimens have come, when it was banned. और उसमें बहुत पैसा कमाते थे प्राइवेट लैब्स वाले, जितने भी बड़े लैब चेन्स हैं, they used to make millions and millions of money out of that. Then not being diagnosed due to poor sensitivity of diagnosis. हमने भी कहा, मैंने भी शुरू में सबों से बताया कि भाई सरकारी सिस्टम में पहले हम स्मीयर माइक्रोस्कोपी के लिए भेजते हैं. स्मीयर माइक्रोस्कोपी इज लेस सेंसिटिव. अगर हम 100 मरीज को स्क्रीन करेंगे तो 7-8 पॉजिटिव निकलेंगे, 9 निकल जाएंगे पॉजिटिव. लेकिन उसी जगह सीबी नैट यूज करेंगे तो 18-20 तक पॉजिटिव निकलेंगे. मतलब हम 8 से 10 केस मिस आउट कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो डायग्नोस्टिक्स है इज नॉट एडिक्वेट, क्योंकि इट इज कॉस्टिंग. वो $10 की एक कार्ट्रिज है और स्मीयर माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें सारा अगर सब कुछ का भी खर्च निकालो, इंक्लूडिंग टाइम ऑफ वो सरकारी लैब टेक्नीशियन जो कर रहा है, वो भी 25 रुपये आता है सब मिलाकर. कहाँ 25 रुपये और कहाँ 750 रुपये. देन अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डिटेक्टेड केसेस. प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट हैज़ बीन इनएडिक्वेट ओवर द ईयर्स. हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर में अगर ट्रीट भी कर रहे हो तो वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास वेयर विदॉल नहीं है. मैं एज अ डॉक्टर लेट सपोज एक क्लिनिक में बैठता हूँ, मेरे पास मरीज आता है, उसकी मैंने डायग्नोसिस की टीबी से, मैंने उसको दवा लिख दी. मैं कभी भी उससे पूछने को नहीं गया कि ये 3000 की दवा है 1 महीने की, तुम खरीद पाओगे या नहीं. 6 महीने तक तुम्हें खरीदना, 18,000 रुपये लगेंगे. मेरा बनता ही नहीं है. वो मुझे मेरे पैसे दे रहा है आज के दिन के, ठीक है, ये लिख दिया, ये दवा खाते रहना, 1 महीने बाद फिर से आके दिखा देना मुझे. चाहे मैंने फ्री भी देखा हो, मैंने अपने पैसे ना भी लिए हों, बट मैंने उससे नहीं पूछा कि 3000 तुम खर्च कर सकते हो, प्लस तुम्हें एडिशनल न्यूट्रिशनल डाइट लेनी होगी, वो तुम कर सकते हो. वो शायद डेली वेज अर्नर है.
So that is the reason. Then reluctance from private sector to report to the national system. Private के डॉक्टर कभी नहीं चाहते सरकारी सिस्टम में, उनको एक वो डर लगता है इनकम टैक्स का रेड करवा देंगे. इट्स अ वेरी जनरल फीलिंग अक्रॉस द बोर्ड. ये हमारे नंबर इन्हें पता चलेंगे, कितनी कमाई हो रही है, ये एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे, इनकम टैक्स का रेड करवा देंगे. भाई आपको रेड से क्या लेना देना है? मुझे नंबर बस चाहिए. आप उससे 1000 ले रहे हो कंसल्टेशन या 10 रुपये ले रहे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं. मुझे बस वो नंबर चाहिए कि मैं उसे सर्विसेज सही दिला पाऊँ, मैं उसको सही ट्रीटमेंट दिला पाऊँ, उसकी सही डायग्नोसिस करा पाऊँ और पूरा उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करा पाऊँ. एंड देन द हेल्थ सिस्टम हैज़ इट्स ओन सर्वेलेंस गैप्स कि हमारी खुद की रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं. फिर ये वही वाली बात, ओवर एस्टिमेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस. So what are the impact of these missed cases? So prevention of disease transmission. Each patient, जैसे अभी बात किया, could infect another 10 odd annually. It has a major health security and economic consequences. क्यों आज के दिन कोविड के बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर? क्यों the whole world is interested in getting everybody vaccinated? क्योंकि कहीं पे भी कोई भी एट रिस्क है तो अदर पर्सन इज एट रिस्क. वाई शुड यूएस फंड whatever, जो भी स्मॉल बिग whatever XYZ अमाउंट फॉर टीबी केयर इन इंडिया एज अ डोनर मनी? वाई शुड इट? भाई उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो दे आर समवेयर इन यूएस, उसको क्या लेना देना है इंडिया में टीबी है नहीं है, मर रहे मरे, मुझे क्या लेना देना? अ वेरी बेसिक थिंग कि इन टुडेज वर्ल्ड पीपल ट्रैवल फार एंड वाइड. सो US citizens would also be coming in huge numbers in countries which has high TB load. वो टीबी लेकर अपने घर में वापस जाएंगे ना, अपने बड़े बुजुर्ग से मिलेंगे, उनको इन्फेक्ट करेंगे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल कम है. It's a very basic thing. That is what is why COVID everybody is talking about today is let everybody, even Africa, get vaccinated. Because कोई भी कहीं भी गया फिर वो वापस अपने यहाँ कोई एक नया स्ट्रेन लेकर आ जाएगा. Then to prevent huge number of ongoing deaths, this could result in drug resistance patterns. Of course, it burdens the health system of the countries and it causes catastrophic costs for the patient. You know, you might have heard या read कि इंडिया में because of health emergencies they form almost 1/3 of the people who are in the middle class going into the below poverty line because of health catastrophes. So that is it. So you see, this is what it is. From 2015 में 217 TB cases per 100 per lakh population. The idea is to go below 50, which is 44, towards elimination of TB in India. And similarly, mortality from 32 to 3. So a 10-year period. Can you beat it? They want this number to reduce by almost 90%. 90%. And catastrophic costs to be totally reduced to nil. This is where we have to aim towards. Because our targets are much more aggressive than the world over targets. The world over says 2030 में मुझे वो चाहिए numbers. But we have resolved we want to get things done by 2025. So the strategy is adopted to target vulnerable population group with intensified active case finding. हमने बात की थी active case finding के उस समय, passive और active, right?
So that is how it is. It has to be targeted in very specific population groups, prisons में, slums में, वैसे ही shelter homes में, tribal areas में, तो वो सब करना है. जितने slums, prison, construction areas, homeless, rural areas में hard to reach villages, जो malnutrition prone है, tea garden, और ठीक है यहाँ तो टी गार्डन नहीं है. Tribal areas, 6 districts you have, tribal districts with substantial population of tribal, more than 30% tribal population in Rajasthan. So those should be your areas. Tribal living in less ventilated huts. This comes back to that same thing, वो जो कहानी बताई hills में ठंड में सारे एक जगह पे रहते हैं, उसके बाद April onwards बड़े सारे TB cases निकलते हैं. So it is something similar there also. And contact tracing. This is one area which has to be majorly focused. कहते रहे हैं साल दर साल से, लेकिन हो नहीं रहा. हाँ जी हो जा रहा, ये है वो. अरे अगर एक केस है वहाँ पे, ओपन केस है, तो इन ऑल लाइकलीहुड वो आस पड़ोस कहीं ना कहीं या तो इन्फेक्ट किया होगा या कहीं से लिया होगा. और बच्चे, क्योंकि दैट इज वन पॉपुलेशन ग्रुप वी आर मेजरली मिसिंग. 25% of the estimates भी हम नहीं कर रहे. Then B, this was A, to vulnerable population. B, private sector engagement, which is the core area. Because 80% have first point of contact with the private sector. Private sector can not necessarily be private doctor. कोई local झोला छाप भी हो सकता है, या गांव का कोई वो भी हो सकता है. Anyone and everyone needs to be roped. कोई वो ईगो और ये नहीं रखना कि वो तो 10वीं फेल है, डॉक्टरी कर रहा है या वटेवर कर रहा है. अगर उसके पास केस है तो आ जाओ भाई, केस है तो आओ. दूसरे को पैसे मिल रहे तुम्हें भी मिलेंगे, हमें केस चाहिए. Then free drugs and diagnostics for private sector. ये is another link which has to be focused. It is there, it is under the program, it is budgeted activity, but it has to be implemented. Then increase support for private patients accessing private sector. वो state ने automatically यहाँ पे आपके यहाँ ये चीज़ कर दी है. So that in itself should be a motivation. 3,000 आप उस डॉक्टर को दे रहे हो, आप उसे बोलो कि भाई बस नहीं चार्ज करना यार, टीबी वाले से 3,000 तो तुम्हें मिल ही जाएगा 6 महीने में, 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से. क्यों बेचारे को और तकलीफ में डालोगे, उसे खाना पीना भी और चाहिए होता है. If we try and explain, if we message it across appropriately, Indian Medical Association, Pediatric Association, other association, कोई भी मना नहीं करेगा. Then of course quality and surveillance is one area which has to be focused across the board, whatever said and done. Already government has increased the domestic funding for private sector involvement. All this activity is from domestic budget. Strengthening TB treatment diagnostic for the first line here. So management capacity, you have to look into कि how capacity building could be done for the staff. कहाँ पे needs ज़्यादा हैं, किस area में focus करना है. Then introducing all kinds of ICT in TB care. और adherence के लिए कैसे mechanisms हम use कर सकते हैं, which is the best possible. अर्बन एरियाज़ में हो सकता है स्मार्टफोन बेस्ड कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं. रूरल एरिया में कोई और सिस्टम करना होगा, SMS बेस्ड या समथिंग. टू थिंक अलग अलग एरिया के लिए क्या कैसे ये चीज़ करनी है. एंड देन ऑफ कोर्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स. वी हैव टू सी कि वन हु इज़ नीडी शुड 100% गेट दैट TBT, चाहे वो होमलेस हो, व्हाटएवर. जैसा ललित जी ने बताया, हमें किसी ना किसी तरीके से उसके अकाउंट या व्हाटएवर कुछ भी खुलवानी होगी, जो मेथड लेना हो. हैव अ गुड अप्रोच विथ लेट्स से SBI में वो जीरो अकाउंट बड़े इजीली खुलते हैं या व्हाटएवर है, उनसे जाकर मिले, उनका जो एरिया का GM है व्हाटएवर, कि भाई वो मैंडेट दे कि भाई जो TB के मरीज़ हैं एटलीस्ट उनके लिए करो, 500 रुपये मिल रहे हैं, उन्हें कुछ खाने पीने को मिलेगा या समथिंग. मतलब आई एम जस्ट वी हैव टू डू इट to see that those things get done. और वो हाईएस्ट लेवल से ही आएगी. नीचे लोकली आप एक जगह एक ब्रांच में 4 मरीज या 10 मरीज के लिए कर सकते हैं.
एक बार कन्विंस कर लिया टॉप बॉस को तो सारे आपके हज़ारों मरीज के लिए हो जाएंगे। रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स एंड स्ट्रेंथनिंग डायग्नोस्टिक पाथवेज, उसमें ही वही देखना कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि भाई किस पॉपुलेशन ग्रुप में क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे आप पूरा जीन एक्सपर्ट वहीं यूज़ कर रहे हो, वहाँ से यील्ड ही नहीं आ रहा क्योंकि वो अपर मिडिल क्लास एरिया है। हाँ, जहाँ स्लम वाला एरिया वहाँ पे जीन एक्सपर्ट यूज़ ही नहीं हो रहा। तो यू हैव टू लुक इनटू, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू लुक इनटू डेटा वेरी इन डेप्थ, डिटेल, डिसएग्रीगेट करके सारी चीज़ें। सो रोल फॉर यू ऑल बिकम्स दैट मच मोर एज पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऑल द मोर। एंड ऑफ कोर्स यूज ऑफ न्यूअर डायग्नोस्टिक्स, तो दैट ऑल्सो हम लोग बातें कर ही रहे थे। वी विल हैव टू लुक इनटू हाउ वी कुड galvanize the state to accept some pilots, something. So you see, this is what I was talking about. Private sector during this time was just this small, but as focus has been put across in private sector, just see the private sector के numbers कितने बढ़ते जा रहे हैं continuously. And it's not just the public sector has also increased. Because they are also taking a cue कि अच्छा वो ऐसे कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। चाहे हो सकता है सारे जिले के सारे DTO वो नहीं करें, हाँ 10 ही करें, हाँ that will also dent, that will also add to the numbers. At the end of the day कोई भी नंबर या कुछ भी बढ़ता है, everything adds to the TSU kitty. Any number which increases adds to your kitty कि you have helped, तो वो चीज़ भी यूज़ करनी है। Similarly drug resistant cases भी देखो, मतलब from 25 it has gone till almost close to 16, just 3.5 years. So it has to be a very concerted effort from all the sides, तभी चीज़ें होती हैं। ये देखें, this is what shows how TB has moved on the finances. तभी मैंने बोला पैसे की कोई कमी नहीं है। Over the years it was 70, 80, 90, this is in $1 million, मतलब it's not in crores. It has come to close to $500 million annually. ये बताता है कि there is commitment from the highest level. There is commitment from the government. आपकी strategy proven है, आप जानते हो क्या कर सकते हो, आपने छोटा सा भी कोई रिजल्ट दिया है वो एक्सेप्ट करेंगे और वो उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार रहेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट, ये कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग फॉर द 2017 to 2025 का प्लान। वी आर ऑलरेडी इन 2022 के 21-22 वाले प्लान में यूटिलाइजेशन of the budgeted 7 years जो भी प्लान है 2025 एलिमिनेशन का, we are still only in 25% utilization. So there is fund. It has to be tapped, it has to be used, and it will give results. And this is the crux of the matter. The World Bank estimates that each dollar invested in TB yields $30 in return, making TB investments great value for money. We need to invest more to find and treat the missing millions. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.